جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ تبدیلی اچانک اور خاموشی سے نہیں آتی، بلکہ اس سے پہلے اللہ اپنے بندے کے دل پر ہلکی ہلکی دستک دیتا ہے، کبھی خوابوں کے ذریعے، کبھی دل کی کیفیت کے ذریعے، اور کبھی ایسی بے چینی کے ذریعے جس کی وجہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ آج یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر یوں ہی نہیں آئی، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک انجانی بے چینی، جیسے کچھ بدلنے والا ہو؟ کیا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس نے آپ کو اندر تک ہلا دیا ہو، یا ایسا خواب جس کے بعد دل کو عجیب سا سکون ملا ہو، جیسے کسی نے خاموشی سے امید کا چراغ جلا دیا ہو؟ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، اور خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں۔ کبھی کبھی انسان وہی پرانی پریشانیاں، وہی قرض، وہی بیماری، وہی تنہائی اور وہی ٹوٹے ہوئے حالات دیکھ دیکھ کر تھک جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات عین اسی لمحے آسمان پر آپ کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جب زمین پر آپ خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو اگر بار بار آپ کے خوابوں یا آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کا اشارہ ہو۔ شاید یہ اس بات کی علامت ہو کہ آپ کے صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آسانیوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اکثر ہم ان اشاروں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ خاموش راز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو نہیں بھولا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی بھولے گا۔ کبھی کبھی انسان دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، روتے روتے خاموش ہو جاتا ہے، اور اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کی آواز آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جب انسان ٹوٹ کر خاموش ہو جاتا ہے تب اللہ کی رحمت اس کے حق میں فیصلے لکھنا شروع کر دیتی ہے، اور شاید آج آپ کا یہ ویڈیو دیکھنا بھی اسی رحمت کا ایک حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شاید آپ کے دل کو ایک بہت بڑی خوشخبری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ خوابوں کے ذریعے آپ کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ اے میرے بندے، بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، کیونکہ تمہاری تقدیر کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور رحمت کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خود کو خانہ کعبہ کے سامنے یا مسجد نبوی کے پرسکون ماحول میں دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہیں، یا عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، یا پھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہو سکتا ہے، ایک ایسا پیغام جو بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا اکثر اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں چلنے والی بڑی پریشانیاں اب ختم ہونے کے قریب ہیں۔ وہ غم، وہ ذہنی دباؤ، وہ تکلیف جس نے آپ کو اندر سے تھکا دیا تھا، اب اللہ کے حکم سے کم ہونے والی ہے، کیونکہ کعبہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ سکون، رحمت اور حفاظت کی علامت ہے۔ اور جب یہی منظر خواب میں نظر آئے تو یہ دل کو امید دیتا ہے کہ اب آپ کی زندگی میں بے چینی کی جگہ سکون آنے والا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی آہستہ آہستہ مشکلوں سے نکل کر آسانیوں کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور اگر آپ بیماری یا کمزوری میں مبتلا ہیں تو یہ خواب دل میں شفا اور امید کی ایک نئی روشنی جگا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی یا سبز گنبد کو خواب میں دیکھنا بھی دل کے لیے بہت بڑی تسلی بن جاتا ہے۔ یہ خواب انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرمانا چاہتا ہے، شاید وہ دعا جو آپ کو ناممکن لگ رہی تھی اب قبولیت کے قریب پہنچ چکی ہے، اور شاید وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو خوشی کے آنسو بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شاید آپ کے دل کو ایک بہت بڑی خوشخبری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب انسان خواب میں ان مقدس مقامات کو دیکھتا ہے تو یہ صرف ایک خواب نہیں ہوتا بلکہ امید کا ایک پیغام ہوتا ہے، ایک ایسا احساس جو دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اب زندگی کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں وہ خوشیاں لکھ چکا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آیا ہے تو اپنے دل کو تسلی دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اپنی خاص رحمت کے لیے چن لیا ہو۔ اب ہر وقت ڈرنے، گھبرانے اور مایوس رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس بندے کا حامی اور مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہو
तो टूटा हुआ इंसान भी दोबारा खड़ा हो जाता है। ये पहली और बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी जिंदगी में खुशियों का वक्त करीब आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी और तारीक क्यों ना हो, सूरज को तुलू होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के दुखों को खुशियों में बदलने का फैसला फरमा लेता है, तो फिर कायनात के हालात भी बदलना शुरू हो जाते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक बंद गली में खड़ी है, हर तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो परेशान मत हो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आने वाली दूसरी निशानी शायद आपकी जिंदगी के तमाम अंधेरे खत्म करने वाली हो। बस जरूरत इस बात की है कि आप उसे पहचान लें। दूसरी निशानी ये है कि ख्वाब में खुद को अंधेरे से निकलकर रोशनी में आते हुए देखना या सूरज को तुलू होते देखना। ख्वाबों की दुनिया में रोशनी हमेशा उम्मीद, हिफाजत, हिदायत और अल्लाह की मदद की अलामत समझी जाती है। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी अंधेरी जगह पर देखते हैं जहां आप परेशान हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं और फिर अचानक कहीं से रोशनी जाहिर होती है, या आप एक तारीक कमरे से निकलकर रोशन मैदान में आ जाते हैं, तो ये एक बहुत गहरा इशारा हो सकता है। ये ख्वाब आपको बता रहा होता है कि आपकी जिंदगी अब मायूसी से निकलकर उम्मीद की तरफ जा रही है। वो मुश्किलात जिन्होंने आपको अंदर से थका दिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाली हैं, और शायद अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोलने वाला है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, तो ये सिर्फ एक तब्दीली नहीं होती, बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज होता है। ख्वाब में अंधेरे से रोशनी की तरफ आना इस बात की अलामत समझा जाता है कि आपकी जिंदगी का मुश्किल और आजमाइशी दौर अब खत्म होने के करीब है। वो लोग जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वो हालात जो आपको हर तरफ से तोड़ रहे थे, वो परेशानियां जो आपका सुकून छीन चुकी थीं, अब अल्लाह के हुक्म से पीछे रह जाने वाली हैं। अल्लाह ताला अब आपके नसीब का सूरज तुलू करने वाला है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि सूरज निकल रहा है और उसकी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि बहुत जल्द आपको इज्जत, कामयाबी और ऐसा मकाम मिलने वाला है जिसका आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। अगर आप बेरोजगार हैं, बार बार नाकामी का सामना कर रहे हैं या रिस्क के मामले में परेशान हैं, तो ये ख्वाब उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह ताला आपके लिए रोजी का ऐसा दरवाजा खोल सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आपके घर में झगड़े, बेसुकूनी या रिश्तों में दूरियां हैं, तो सूरज की रोशन करने इस बात की तरफ इशारा हो सकती हैं कि अब वो अंधेरे खत्म होने वाले हैं। जैसे सुबह की धूप रात के साए मिटा देती है, वैसे ही अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से गम और उलझने दूर करने वाला है। एक बात बहुत खास है, अगर ख्वाब में रोशनी नरम, सफेद और दिल को सुकून देने वाली महसूस हो, तो ये रूहानी सुकून, दुआ की कबूलियत और अल्लाह की रहमत की अलामत समझी जाती है। और अगर आप देखते हैं कि बादलों के दरमियान से सूरज की रोशनी निकल रही है, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि मुश्किलात के बादल अब छुटने वाले हैं और कामयाबी का रास्ता साफ हो रहा है। ऐसे ख्वाब के बाद इंसान को मायूसी अपने दिल से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए आसानियां लिख देता है, तो फिर हालात बदलने में देर नहीं लगती। जब अल्लाह किसी को तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले आता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा अंधेरों में नहीं धकेल सकती। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है, तो हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और रोशन दौर शुरू होने वाला हो। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अचानक इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंच जाते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। वो लोग जिन्हें कल तक कोई जानता भी नहीं था, आज वो कामयाबी, इज्जत और सुकून की मिसाल क्यों बन जाते हैं? अक्सर इसके पीछे अल्लाह की वो रहमत होती है जो खामोशी से इंसान की तकदीर बदल देती है। असल में जब इंसान की तकदीर बदलने का वक्त आता है, तो वो लम्हा आसमानों पर पहले ही तय हो चुका होता है। फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को कुछ इशारे देना शुरू फरमाता है, जैसे वो अपने महबूब बंदे से कह रहा हो कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ चुका है। अब वो लम्हा करीब है जब तो दुनिया की मुश्किलात और ठोकरों से निकलकर कामयाबी और बुलंदी की तरफ बढ़ने वाला है। अगर आपने ये तीसरी निशानी देखी है, तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। आपका ज़वाल खत्म हो रहा है और एक नया उरूज शुरू होने वाला है। तीसरी निशानी ये है कि ख्वाब में खुद को बुलंदी की तरफ जाते हुए देखना या उड़ते हुए महसूस करना। ख्वाबों की ताबीर में बुलंदी हमेशा इज्जत, वक़ार, तरक्की और मकाम में इजाफा की अलामत समझी जाती है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या किसी बहुत बुलंद इमारत की सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता तय करके ऊपर जा रही हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको मुआशरे में एक बड़ा मकाम अता करने वाला है। इस ख्वाब की गहराई ये है कि अगर रास्ता आसान नहीं था,
अगर आपको चढ़ाई में मुश्किल महसूस हुई, थकन हुई, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं और आखिरकार चोटी तक पहुंच गए, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, जो आंसू आपने छुप कर बहाए हैं और जो मेहनत आपने खामोशी से की है, अल्लाह अब उन सब का बेहतरीन बदला देने वाला है। ये ख्वाब इस बात की उम्मीद देता है कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, बल्कि वही मेहनत आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगी, चाहे वो मकसद अभी आपको कितना ही दूर या नामुमकिन क्यों ना लग रहा हो। और एक बहुत मजबूत निशानी ये भी है कि अगर आप ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखते हैं, जैसे आप परिंदों की तरह आसमान में बुलंद हो रहे हैं और नीचे जमीन बहुत छोटी नजर आ रही है, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम पाबंदियों, दुखों और बोझों से आजाद करने वाला है जिन्होंने आपकी जिंदगी को रोके रखा था। ये ख्वाब एक ऐसा एहसास देता है जैसे आपकी रूह आजाद हो रही हो और आपकी जिंदगी एक नए दौर में दाखिल होने वाली हो, जहां बोझ नहीं बल्कि वुसअत और आसानी होगी। उड़ने का मतलब ख्वाबों की दुनिया में कामयाबी की तरफ सफर समझा जाता है। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है या कोई ऐसा मौका मिलने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। सबसे खास बात यह है कि अगर आप ख्वाब में बुलंदी पर पहुंचकर खुद को महफूज महसूस करते हैं और नीचे का मंजर खूबसूरत लगता है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपकी आने वाली जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और आसानियां गालिब रहेंगी। ऐसे ख्वाब अक्सर उन लोगों को ज्यादा आते हैं जिनकी दुआओं की कबूलियत का वक्त करीब होता है और जिनकी जिंदगी में अल्लाह ताला कोई बड़ा दरवाजा खोलने वाला होता है। ये भी समझें कि जब इंसान दुनिया के सहारों से हटकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा करता है, तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उसे ख्वाब में ऐसी बुलंदी दिखाता है जो उसकी आने वाली हकीकत की तरफ इशारा बन जाती है। अगर आपने खुद को ऊपर जाते हुए देखा है तो फिर मायूसी की तरफ वापस मत जाएं और ना ही हिम्मत को छोड़ें, क्योंकि ये ख्वाब आपको ये एहसास दिलाता है कि शायद अल्लाह ने आपको बुलंदी के लिए मुंतखब कर लिया है और अब आपकी तकदीर के सितारे सिर्फ गर्दिश में नहीं बल्कि एक नई चमक के साथ आसमान की बुलंदियों पर रोशन होने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अल्लाह ताला जब किसी वीरान और टूटे हुए दिल को आबाद करना चाहता है तो वो पहले उसे उम्मीद के ख्वाब दिखाता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी की सख्तियों, परेशानियों और आजमाइशों में इस कदर थक चुके होते हैं कि हमें सुकून और राहत सिर्फ एक ख्वाब लगने लगता है। लेकिन जब रब्बे करीम किसी बंदे पर अपनी रहमत का फैसला फरमाता है तो वो उसे ऐसे इशारे देता है जो इस बात का ऐलान होते हैं कि अब अंधेरों का वक्त खत्म होने वाला है। और शायद यही वो लम्हा होता है जब सूखे हुए दरख्त भी दोबारा हरे होने लगते हैं और दिल फिर से जीने लगता है। ये चौथी निशानी उन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत से मायूस हो चुके हैं कि ख्वाब में सब्जा, फलदार दरख्त और एक खूबसूरत बाग देखना, ये मंजर ख्वाब में आ जाए तो दिल खुद ब खुद एक अजीब सी उम्मीद और सुकून महसूस करता है। ऐसे ख्वाब अक्सर खुशखबरी, रहमत और अल्लाह की तरफ से आने वाले सुकून की अलामत समझे जाते हैं। गोया ये जन्नत की एक हल्की सी झलक हो और दुनियावी जिंदगी में इत्मीनान और बरकत का पैगाम हो। अगर आप ख्वाब में खुद को ऐसे बाग में देखते हैं जहां हर तरफ हरियाली हो, दरख्त फलों से भरे हों और एक ठंडी नरम हवा चल रही हो, तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके घर में बरकतें नाजिल करने वाला है। वो घर जहां पहले परेशानी थी वहां सुकून आने वाला है। अगर कोई शख्स माली मुश्किलात में हो और वो ख्वाब में देखे कि वो बाग से फल तोड़कर खा रहा है, तो उसकी ताबीर ये ली जाती है कि अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द हलाल रिज़्क का ऐसा दरवाजा अता कर सकता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। फल खाना अक्सर इस बात की अलामत समझा जाता है कि अब आपकी मेहनत का वक्त आ गया है। जो कुछ आपने बरसों से बर्दाश्त किया वो अब नतीजा देने वाला है। अगर वो फल मीठा महसूस हो तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आने वाली खुशखबरी भी बहुत बड़ी और दिल को खुश कर देने वाली होगी, जैसे घर में खुशी का आना, औलाद की नेमत या किसी बड़े कारोबार में कामयाबी। सब्जा और हरियाली का ख्वाब में आना अमूमन ईमान की ताजगी, दिल के सुकून और अल्लाह की रजा की अलामत समझा जाता है। ये ऐसा एहसास देता है जैसे इंसान के अंदर से थकन खत्म हो रही हो और रूह को ताजगी मिल रही हो। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप एक बंजर और खुश्क जमीन पर खड़े हैं और अचानक वहां समान सब्जा उगना शुरू हो जाता है, घास उगने लगती है या दरख्त निकल आते हैं, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपकी वो जिंदगी जो मुश्किलात और परेशानियों की वजह से थम गई थी अब दोबारा से आबाद होने वाली है। ये ख्वाब खास तौर पर उन लोगों के लिए एक बड़ी तसल्ली बन सकता है जो खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो अपनी इज्जत नफ्स या अपनी उम्मीदें खो चुके हैं। और एक बहुत खास बात यह है
कि अगर आप ख्वाब में खुद को पौधा लगाते हुए देखते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम शुरू करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी किस्मत बदल देगा बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी एक खैर और सदका जारिया बन सकता है। सुकून का असल सबब भी अल्लाह ही है, और जब वो किसी बंदे के दिल में इत्मीनान डाल देता है तो फिर दुनिया की कोई तकलीफ उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकती। अल्लाह ताला का एक अंदाज ये भी है कि वो अपने बंदे को मोहब्बत, उम्मीद और इशारों के जरिए अपनी तरफ बुलाता है, और बाज़ औक़ात यही ख्वाब उस मोहब्बत भरी बुलाने की एक खामोश निशानी बन जाते हैं। जब आप ख्वाब में कुदरत के ऐसे हसीन मनाजिर देखते हैं, सब्ज बाग, ठंडी हवा, फलों से भरे दरख्त या रोशन मनाजिर, तो ये एहसास दिल को ये उम्मीद देता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के सहरा को बदलने का फैसला फरमा लिया है। जैसे खुश्क जमीन पर बारिश के बाद सब कुछ हरा हो जाता है, वैसे ही बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आता है जब गम आहिस्ता आहिस्ता तम होने लगता है और दिल में बहार उतर आती है। फिर इंसान को लगता है जैसे उसके रब ने उसके नसीब में भी खुशियों की एक नई फसल लिख दी है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल को छू जाते हैं और वो कई दिन तक उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल पर खामोशी से मरहम रख दिया हो, जैसे किसी ने उसे ये एहसास दिलाया हो कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई ऐसी जात मौजूद है जो हर वक्त उसकी हालत जानती है। ये 5 निशानियां दरअसल उन लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम बन जाती हैं जिनके दिल टूटे हुए हों, जो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हों, या जो ये समझने लगें कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलने का इरादा फरमा लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस तब्दीली को रोक नहीं सकती। अगर आपने ये इशारे देखे हैं तो हो सकता है ये इस बात की तरफ इशारा हो कि आपकी जिंदगी का सफर अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ शुरू होने वाला है। और फिर निशानी नंबर 5 ये है कि ख्वाब में किसी बुजुर्ग, नूरानी शख्सियत या सफेद लिबास में मलबूस इंसान को देखना। ख्वाबों की दुनिया में अगर कोई बुजुर्ग, पुरनूर चेहरे वाला शख्स आपके ख्वाब में आए तो उसे अक्सर गैबी मदद और अल्लाह की तरफ से हिफाजत की अलामत समझा जाता है। अगर आप देखें कि वो बुजुर्ग आपसे मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, आपको कोई चीज दे रहे हैं या आपको तसल्ली दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अहम इशारा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। और अगर वो कोई नसीहत करें या कोई खास बात कहें तो उसे दिल में महफूज रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब इंसान के लिए सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई का जरिया बन जाते हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि वो नूरानी बुजुर्ग आपके सर पर हाथ रख रहे हैं तो इसका मतलब अक्सर ये लिया जाता है कि आप पर अल्लाह की खास रहमत और हिफाजत का साया है। ये मंजर दिल को यह एहसास दिलाता है जैसे कोई बहुत बड़ी बोझल दुआ जो आप बरसों से मांग रहे थे अब आहिस्ता आहिस्ता कबूलियत की तरफ बढ़ रही हो। बाज़ औक़ात इंसान की दुआएं इतनी देर तक आसमान पर रखी जाती हैं कि वही दुआएं वक्त आने पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाती हैं। और अगर ख्वाब में वो बुजुर्ग आपको कोई चीज देते हुए नजर आए, जैसे तस्बीह, कोई तोहफा, खाने की चीज या कोई और अलामती चीज, तो इसकी ताबीर में अक्सर ये समझा जाता है कि ये रिस्क हलाल, बरकत और गैब से आने वाली आसानियों की निशानी हो सकती है। यानी ऐसे दरवाजे खुलने का इम्कान होता है जिनके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता, और जिंदगी में ऐसे रास्ते सामने आ सकते हैं जहां से सुकून और खुशहाली शुरू हो जाए। इस ख्वाब का एक और पहलू ये भी समझा जाता है कि इंसान की जिंदगी में जो रुकावटें, उलझने या गलत फहमियां चल रही होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं, और बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते या मसाइल खुद ब खुद अपनी जगह से हटने लगते हैं। ऐसे ख्वाब के बाद इंसान के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है, जैसे अंदर से कोई बोझ हल्का हो गया हो। ये कैफियत अक्सर इस बात की अलामत समझी जाती है कि इंसान की रूह किसी उम्मीद, किसी बेहतरी और किसी आने वाली आसानी को महसूस कर रही है। बाज़ औक़ात ये ख्वाब उन लम्हात में आते हैं जब इंसान बिल्कुल टूट चुका होता है और उसे महसूस होता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ऐसे वक्त में यह एहसास दिलाया जाता है कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तुझे एक नए मरहले के लिए तैयार कर रहा है। यही 5वीं निशानी दरअसल एक अंदरूनी इशारा बन जाती है कि जो मुश्किल आज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही कल तुम्हारी कामयाबी का जरिया बन सकती है। अगर आपको ऐसा ख्वाब नसीब हुआ है तो उसे खामोश इत्मीनान के साथ याद रखें और ये यकीन दिल में रखें कि शायद आपकी जिंदगी का एक नया और बेहतर बाब खुलने वाला है।
जहां बंद दरवाजे खुलेंगे और तकदीर नए रास्तों की तरफ बढ़ने लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 निशानियां महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये वो नर्म और खामोश इशारे हैं जो कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल को ये एहसास दिलाने के लिए देता है कि वो उन्हें कभी तन्हा और टूटा हुआ नहीं छोड़ता। अगर आपने उनमें से कोई भी निशानी अपने ख्वाबों या अपनी जिंदगी में महसूस की है तो दिल को ये इत्मीनान दे दें कि शायद आपकी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुलने का वक्त करीब आ चुका है और बहुत जल्द आपके घर की दीवारों पर खुशियों की दस्तक सुनाई देने वाली है। आइए इस वीडियो के आखिर में हम सब मिलकर एक दिल से निकली हुई दुआ करते हैं। कौन जाने किसकी एक आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और किसी की पूरी तकदीर बदल जाए। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने दुआ के लिए उठे हुए हैं, जो आंखें उम्मीद और परेशानी के साथ ये अल्फाज सुन रही हैं, ऐ मेरे रब, तू उन सब के हालात को अपने करम से बदल दे। ऐ अल्लाह, जो लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं उनके लिए आसानी के दरवाजे खोल दे। जो बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें कामिल शिफा अता फरमा, और जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनकी उम्मीदें कमजोर हो चुकी हैं, ऐ अल्लाह, अपनी कुदरत से उनके दिलों को सुकून और उनकी तकदीर को खुशियों में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो दिल से आमीन जरूर लिखें, क्योंकि मोमिन की दुआ में बहुत ताकत होती है और बाज़ औक़ात एक आमीन किसी के लिए रहमत का दरवाजा खोल सकती है। और देखें, हमारा मकसद यही है कि ऐसी बातें आप तक पहुंचती रहें जो दिल को अल्लाह के करीब करें और उम्मीद को जिंदा रखें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे और अल्लाह के जिक्र और उसकी निशानियों की ये रोशनी खत्म ना हो। इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल परेशानियों में हैं।